थोड़ा सा सर हो रहा है। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, कुछ मैंने क्या अच्छा, उस लेडी ने इंसल्ट कर दिया सिम। സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ ഫോണിന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയാൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും ടവറും മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ എന്നെ അറിയിക്കണം. ശരി സർ, ഞാൻ വിളിക്കാം. उसका फोन शायद ले जा लिया था उन्होंने। करके ना फोन पे नया फोन इंसर्ट किया तब लग रहा है मुझे फोन ले लिया होगा फिर शायद उस टाइम फोन ले जा लिया था उन्होंने। നേരെ പറ, ഏത് ഭാഷ വേണ്ടത്? സാർ ആദ്യം ആ വണ്ടി ഒന്ന് കാണും, എന്നിട്ട് പറയാം. എന്നാ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി. ओ ये गाड़ी हो जी, वो गाड़ी മനസ്സിലായോ? ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധനം. ब्लड स्टेन ढूंढने का मतलब ब्लू कलर मतलब अच्छा खून के दाग थे। अगर ब्लू कलर हुआ तो मतलब उसमें ब्लड था। चलो ठीक कार ഇതുവല്ല മോഷണ വണ്ടി വല്ലതും ആണോ? പാർട്സ് വാങ്ങിയില്ല. ഓണർ തന്നെയാണോ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത്? ഓണറാണോന്നറിയില്ല, വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ആളല്ലാതെ വേറെ ആരും आरसी की फोटो खींच रहा है। ओ ഇരിക്കും. വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ സാറേ? ये आदमी कौन है? സാറേ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഒരു പഴയ വണ്ടി കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. വണ്ടി വിറ്റത്? അതെ. എന്നാണ് പരസ്യം കൊടുത്തത് അറിയോ? കാര്യമില്ല, അത് പൊളിച്ചു കാണും. വണ്ടി കൊണ്ടതിന് ശേഷം അയാൾ വീണ്ടും വന്നിരുന്നു. വണ്ടിക്ക് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്നും അതിനി നന്നാക്കാൻ വണ്ടി എടുക്ക. ശരി സാർ. ആ സുധി, ആ സർ. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്നൊരു പരസ്യമാണ്. അതിലെപ്പോഴും വിളിക്കാത്ത നമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ അയച്ചോളാം സാർ. ആ വരാൻ പറഞ്ഞു. इनको बुला दिया उसने। ये आदमी कौन है? ये तो नहीं डीलर हो, इसका दोस्त है ना? तीनों दोस्त था। ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ സ്ത്രീയുടെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് സുധി എടുത്തിരുന്നു. ആ ME നമ്പറുള്ള ഫോണിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാ अच्छा अगले 48 घंटे में दोबारा होने वाला इस टाइप का एक्सीडेंट। ആ കാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ? ഞാൻ രാവിലെ ആ വഴിക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. അവർ ഓരോ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷവും ആക്സിഡന്റിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ വണ്ടിയായിരിക്കും. സ്റ്റെല്ലയെ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയ കാറിന്റെ ഓണറെയും ഇവർ പത്രപരസ്യം കണ്ട രാജേഷ് വരച്ച രേഖാചിത്രം കൊണ്ട് നായരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്ളാറ്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ നായർക്കറിയാം. അവർ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു തെളിവും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പിന്നെ വെറുതെ मिल गया। ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം. लोकेशन मिल गया सर। मतलब हर जगह उसकी സാറേ मदद के लिए तैयार है। സാറേ ആൾ അത് തന്നെയാ. 2 ദിവസം മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പഴയ അംബാസഡർ കാർ വാങ്ങി. इसी अपार्टमेंट में रहता हो आदमी। നിങ്ങളിവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങും പോരുത്. അവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടനടി എന്നെ അറിയിക്കണം, ഫോളോ ചെയ്യണം. फॉलो करेंगे सर। मतलब हर टाइम वो अलग अलग कारें यूज़ करते हैं, सेकेंड हैंड कारें। क्या चीज़ है? अच्छा तो ठोकेंगे।
वो आदमी भी हैरान हो रहा है. ആ നേരെ ആ. വീട്ടിലായിരുന്നോ? ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ कैमरा मंगा रखे हैं. നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീനിവാസനെ ഏൽപ്പിക്കണം. നമ്പർ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് SPA. क्या हुआ? गाड़ी का लॉक खोल दिया. इसमें फिट करेंगे शायद कैमरा. कोई आ ना जाएगा. लगा दिया. उनके पास एविडेंस होना चाहिए ना. एक बार इन्हें अगर एविडेंस मिल जाए तब सब कुछ ठीक हो जाएगा. बस पता ना चल जाए उसे कहीं. पिस्टल दे रहा उसे कॉन्फिडेंस के लिए. इसे देखने का തന്റെ നാമത്തെ പ്രതി നീതിയുടെ പാതയിൽ എന്നെ നയിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു. धार्मिक बन गए. पहले बन जाता है ऐसे. हाँ, क्यों पहले जब अगर उसके वो सही से रहता तो सब ठीक होता. 6 बजे. എന്തായി? ഏയ് അവര് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. अब तक नहीं आया. നീ വരുന്നില്ലേ? इंतजार करते हैं उसका. कहीं इन्हें शक तो नहीं हुआ या उन्होंने देख लिया हो. कब से बनाई थी दाढ़ी. सोच रहा हूँ कोई फर्क नहीं करता से. नींद आ गई. रात भर इंतजार किया मैंने. स्कूटर चला रहे हैं. हाँ ये लोग तो रहते हैं हमेशा. जल्दी फोन करना पड़ेगा से जोसेफ को. സിദ്ദിഖേ അവരിറങ്ങി. ജോസഫിനെ വിളി. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. चर्च में. अबे अरे जैसे कॉल भी नहीं उठाया. इतना भी नहीं सोच रहा. अर्जेंट होगा. आज तो वैसा दिन था ना. आज तो उठाने से था. എന്താ പത്രോസ് അവര് മിസ്സാവും. അവരെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. गाड़ी खराब हो गई. ओ टायर पंचर कर दिया. मतलब उसे पता था ओहो कि ये मेरे पीछा ये हमारा पीछा करने वाले हैं. भयंकर की. क्या है कि गाड़ी में बैठे हुए बाइक तो रखते अपने पास. कैसे पुलिस वाले. उनकी गाड़ी का टायर खुद ही हुआ होगा पंचर ही फिर उससे नहीं किया होगा. क्या हुआ. रात को सो रखे थे वो. तो फिर से वही जीप आ गई. मेरा जोसेफ जाएगा शायद उस सड़क पे. पता लग गया होगा सर कि आ रहे हैं वो सड़क पे. इसी पता है सर. कोई जीप पीछे से आ रही है. उसने भी ऐसे किया. इसके साथ में ऐसे हुआ. इस बार के साथ ही वो सब करवा रहा है. हेलमेट तो पहन लेता. ओ
और देखो ऐसे देखता है वो। अब आएगी एक और गाड़ी। ये वो कार मुझे ले जाए तब मैं उन्हें पकड़ लूँ। देखो कोई यकीन भी नहीं कर सकता। हाँ, और सोचेंगे बहुत मददगार लोग। इनका काम यही रहता होगा कि हॉस्पिटल छोड़ना है उसी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल वाले फिर खुद ही मार देते हैं उसे, ऑर्गन्स निकाल देते हैं। अपने दोस्तों को तो बताना चाहिए था, ऐसे नहीं कि मैं ये सब करने वाला हूँ। हाई कोर्ट में चले गया मामला शायद। कौन आया? फायर किया शायद इसने। റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ 510/2018. ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ജോസഫ് എന്ന റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മരണവും वही केस उठा रही है। അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ പ്രശ്നങ്ങളോ സ്റ്റെല്ലയ്ക്കുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് ഞാൻ പീറ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ. എന്റെ മകളും ഭാര്യയും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയത് ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മകളുടെ ജീവിച്ചിട്ടും കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കാതെ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. ശരി സാറേ. തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആ കുട്ടി ഇത്രയും നാളെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നതും അതേ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ലിസ്റ്റുമായി ഒത്തുനോക്കും. മൃതസഞ്ജീവനി ലിസ്റ്റിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുടെ അവയവങ്ങൾ മാച്ചാകുന്ന ആളുകൾ മറ്റ് ആശുപത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അപകടം പറ്റി വന്നയാളെ 1 മാസം അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിച്ച് വിട്ടാൽ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം 10 ലക്ഷം. ഇത്തരം വാർത്തകളെ സിനിമാ കഥകൾ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മരണവും അന്വേഷിച്ച ജോസഫ് സമൂഹത്തിന് തരുന്നത് മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടില്ല. സർജറി നടന്നെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ മകളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതെല്ലാം വൻകിട ആശുപത്രികളിൽ ഡിജിറ്റലായാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ സുധിയുടെ സഹായം തേടി. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് കേസ് ഷീറ്റ്, അന്നത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ആക്കിയത്. അതുകൊണ്ടിപ്പോ അവരിനി അവിടെ ചെന്ന് ഓരോ അപ്ഡേഷൻസും സാർ. അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന എന്നു പേരുള്ള ഒരു വിദേശ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതായി റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ഏതാണ്ട് 15 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അന്ന എന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യയിലെത്തി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായത്. ഒന്നാമതായി വന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ജോസഫിന്റെ മകളുടെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി ആശുപത്രിക്കാർ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം അത് ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അതിൽ ചെറിയ അസുഖവുമായി ഈ നെറ്റ്വർക്കുള്ള ആശുപത്രികളിൽ വരുന്ന ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും മൃതസഞ്ജീവനി ലിസ്റ്റിൽ അവയം വേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റുമായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മേഖല സഞ്ജീവനി ലിസ്റ്റുമായി ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു. അതിൽ AB നെഗറ്റീവ് എന്ന റയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അതിന്റെ റിസൾട്ടും അവയവം വേണ്ടയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒത്തുനോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ മാച്ചായി കണ്ടു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ട എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്ലോഡ് ആവുകയും ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട കൃത്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്റെ ദിനചര്യയിലൂടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അയാൾ സീനിയോറിറ്റിയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഫോണുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതും ഞാൻ മാത്രമാവണം അവരുടെ ഇര. उसने खुद किया था पंचर।
എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകളടക്കം അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ताकि वैसे ही सब क्रिएट हो। उसके बाद नहीं दिखाया ना जब हॉस्पिटल में इन्होंने उठाई डेड बॉडी, रिकॉर्ड हो रहा था सब है। सब दिख रहा, सब क्या क्या करते हैं ये लोग। क्या कर रही? बैग, माय गॉड, थोड़ा सा सर हो रहा है, ऐसे मौत हो गई। എത്തിക്കാണെന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റാർക്കു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എത്തപ്പെടുക. സർജറി എല്ലാം നടന്ന് 24 തെളിവിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തന്നെ തെളിവായി തരുന്നത്. एविडेंस के तौर पे यूज किया जाए, मतलब इसने अपनी मतलब जान दे दी मतलब। तो जो स्टार्टिंग में दिखा नहीं देते वो जो मेडल मिलता था, तो इसी का मेडल था ना। हाई कोर्ट में चला गया था ये मामला। ജോസഫ് ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണ്. ജോസഫിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ഓരോന്നും ശരിയായിരുന്നു. നമ്മളിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കിഡ്നി രോഗിയിൽ ജോസഫിന്റെ ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പകരം അയാൾ പക്ഷേ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രാജ്യത്താകമാനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നായതിനാൽ ഈ കേസിന് സമാനമായ सीबीआई जांच करेगी। ജോസഫ് എന്ന റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എടുത്ത പ്രയത്നം മറ്റെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് കോടതി മാനിക്കുന്നു. കേരള നിർദ്ദേശങ്ങളായ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാരുടെ പാനലിൽ പോലീസ് വ്യക്തി എപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ അവയവങ്ങളുടെ DNA ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കുവാനും ഇതിന്റെയൊക്കെ नीलातारमाई वो दिखाई नहीं पकड़ते हुए जिन्होंने किया वो। अभी तो सीबीआई भी करेगी ना इंक्वायरी, पर अब तो पकड़े आएंगे वो, ये सारे एविडेंस इनके पास है। നിനക്കായൊരിക്കൽ നീയുള്ളമെൻ ജീവനേ നീ അതില്ലാതെ വയ്യൻ കണ്ണെത്താ ദൂരം ഉള്ളം കൈ നിൻ കയ്യിൽ ചേരുമ്പോ കാലം। यहाँ पर फिल्म खत्म होती है। जोसेफ 18 की फिल्म थी, मलयालम फिल्म थी और बहुत अच्छी बना रही थी। मूवी मतलब जिस तरह का केस इसमें दिखा रखा है तो मतलब काफ़ी यूनिक सा है ना। वैसा केस मैंने देखा नहीं किसी फिल्म में ना। मतलब इस तरह का तो मतलब देखा हमने मूवीज़ में कि जिस तरह से डॉक्टर करते हैं कि मतलब ऑपरेशन के रुपए ले लेते हैं फालतू में, जबकि ऑपरेशन की ज़रूरत होती भी नहीं है, और जबकि मतलब पेशेंट मर चुका होता है, फालतू में ऑपरेशन के रुपए ले लेते हैं, या उन्हें पता होता है कि मरने वाला है फिर भी ऑपरेशन के नाम पर रुपए लेते हैं। मतलब उस तरह का सुना हुआ है, बट जैसे इसमें दिखाई गया कि किस तरह से वो पूरा एक वो प्लानिंग करके ये लोगों को मारते थे। 4 लोग थे वो, पहले एक गाड़ी आती थी वो टक्कर मारती थी, उन्हीं के रहते थे ना हॉस्पिटल
वालों के लोग रहते थे होंगे वो, जो ये सब करते थे। फिर दूसरी गाड़ी आती थी, हाँ, वो उनको उठाती थी, और फिर उसे सर पे वार करती थी और ताकि उसके ब्रेन की डेथ हो जाए, हाँ इसलिए करते थे ऐसा। सर पे वार करने से डेथ हो जाती है, तब इस वजह से मौत हो गई थी उसकी। मतलब ब्रेन की डेथ हो जाती थी, बाकी ऑर्गन्स उस समय काम कर रहे थे। हाँ, फिर वो फटाफट ऑर्गन्स वो कर देते थे, निकाल देते थे। ये शुरुआत में फोन नहीं आता क्या, 1 घंटे के अंदर इनके ऑर्गन्स निकाल लो, हाँ, डोनेट करवा दो, इनके काम आ जाएंगे से। तो ऐसे करते थे, ऐसे ही करते थे। इसकी बेटी भी और वाइफ भी दोनों से हॉस्पिटल मरे। एक ही हॉस्पिटल था ये पूरे शहर में, किसी हॉस्पिटल में होता तो क्या होता, जान बच जाती। हाँ, पर ये था ना कि अरे जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, तो एक्सीडेंट तो के बाद उसी हॉस्पिटल में ले आते थे उस बॉडी को ना। हाँ, तो जो लोग लेकर जाते थे तो उन्हीं उसी हॉस्पिटल के तो थे वो लोग, वो तो जानबूझ के वहीं लेकर जाते थे ना। अब वो खुद से तो लेके जा नहीं रहे, अब वही लोग लेकर जा रहे हैं वहाँ पर उस हॉस्पिटल में। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब केस इसमें दिखा रखा था, और स्टोरी भी मतलब अच्छी थी। और जोसेफ का जो इसमें मतलब जो रोल था ना, जो कैरेक्टर था, मतलब बहुत ज़्यादा वो था, एक अमेजिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, और हर केस को वो मतलब काफ़ी अच्छे से और मतलब काफ़ी बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेता है। बहुत जल्दी, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है उस केस को। जैसे स्टार्टिंग में जो दिखाया गया वाला केस, तो उसमें उसने वो जो था वो क्रिमिनल उसको कुछ ही टाइम में पकड़ लिया था, एक घंटे में शायद, 1-2 घंटे में। तो वो चीज़ उन्होंने शुरुआत में इसलिए बताई फिल्म में ना, उससे पता लगे कितना सातिर है, मतलब कितना वो है ना, इंटेलिजेंट है। ये इसकी खूबियाँ है कि वो तुरंत केस को सॉल्व कर देता है और कल्प्रिट को पकड़ लेता है। वो काफ़ी टैलेंटेड था ना, और वो मतलब केस को बहुत बारीकी से देखता था, उसे एनालाइज करता था, और क्रिमिनल का पता लगा लेता था। और इसमें भी जब उसने अपनी वाइफ की मतलब इन्वेस्टिगेशन की, तो तब भी उसने मतलब सारी चीज़ों पे वो किया, उसने गौर किया, और बहुत डिटेल में उसने इन्वेस्टिगेशन की। और उसे जो उसके जो वो थे, जो उसके दोस्त थे, तो उनकी उसे मतलब काफ़ी हेल्प मिली। अब वो एक पुलिस वाला था पहले, तो इसका उसे काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि उससे वो जानता था जो अभी काम कर रहे हैं और जो उसके साथ के ही हैं, तो सब ने मतलब सबसे उसके अच्छे कॉन्टैक्ट थे पुलिस में, तो इसलिए उसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और इजीली वो हर चीज़ का पता लगा लेता था। और फिर इंटेलिजेंट तो था ही वो बहुत, तो उसने पता लगा लिया था उसके कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, और ये मतलब ऐसा क्यों करते हैं। तो मतलब उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मतलब खुद ही अपनी जान मतलब गंवा दी थी। ऐसा उम्मीद नहीं की थी मैंने कि जो फिल्म का हीरो है जोसेफ, वो मर जाएगा। नहीं, पर जैसे स्टार्टिंग में जब वो मेडल नहीं दे रहे थे, हाँ, तब थोड़ा सा लगा मुझे, तब लग रहा था मुझे कि शायद इसमें जो ये हीरो है ये इसकी मौत होगी, और वैसा ही हुआ। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना शायद, मतलब कोई और ऑप्शन भी क्या हो सकता था उन्हें पकड़ मारने का। मतलब एविडेंस तभी मिलेंगे जब एक तो उसने अपने स्कूटर पर लगा रखा था पीछे से कैमरा, बाकी तो कार में फिट कर ही रखे थे दोनों की मदद से। पर ये भी था ना कि वो सब करें वो क्राइम, तब जाके तो पता चलेगा। और फिर जिस तरह से उसने हथौड़ा मारा उसके सर पे,
वो भी नॉट, तो वो तो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई होगी ना। वो भी कैप्चर हो गया था हाँ सब चीज़। तो ये कि उन्हें पकड़वाने के लिए तो उसे ये सब करना ही पड़ा। और अगर वो ये सब नहीं भी करता तो फिर उन्हें अरेस्ट करवाना और इस चीज़ का खुलासा करना, इस रैकेट का, मतलब पॉसिबल नहीं था क्योंकि एविडेंस कुछ थे नहीं ना उनके खिलाफ। क्योंकि हर बार वो गाड़ी बदल देते थे और अगर वो मतलब उन पे केस करता भी तो वो हार जाते बिना एविडेंस के। इसीलिए उसे मेडल दिया गया फिर बाद में ना, क्योंकि जो उसने मतलब काम किया ये बहुत बड़ा काम था। क्योंकि उसने जब से लिस्ट निकाली तब उसने देखा बहुत सारे लोगों के क्योंकि ऑर्डर मतलब मैच हो रहे हैं। इससे ये हुआ कि मतलब ये जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं तो अगर वो पकड़े गए तो फिर ये क्राइम फिर से नहीं होगा। और ये केवल मतलब उसकी वाइफ और उसकी बेटी का ही बदला नहीं था बल्कि सबका ही इससे भला होगा। जिन भी लोगों को वो इस तरह से मार रहे हैं ना उन सबका एक तरह से बदला है वो। और अब इस तरह का क्राइम फिर अगर ये पकड़े गए तो फिर नहीं होगा। तो जो उसने काम किया मतलब वो बहुत वैसा काम था ना एक ब्रेव, हाँ, जिसे हर कोई कर नहीं सकता। तो मतलब स्टोरी अच्छी थी और बाकी फिल्म भी अच्छी है। फिल्म भी अच्छी है जिस तरह से बना रखी है। और फिल्म में मतलब केवल ये नहीं केवल एक ही केस की इन्वेस्टिगेशन दिखा रखी है, ऐसा भी नहीं है। जोसेफ का जो कैरेक्टर है उसे भी दिखाया गया है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो भी दिखाई गई। जैसे पहले उसकी जो वो थी गर्लफ्रेंड जो थी उससे वो शादी करना चाहता था, वो भी उससे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे ना, पर नहीं कर पाए वो शादी। और फिर उस लड़की की शादी हो गई थी, और फिर इसकी भी शादी हो गई थी बाद में। और फिर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उस लड़की की मतलब मौत हो रही थी और वही उसकी इन्वेस्टिगेशन करने गया था। तो उसके बाद से वो मतलब बहुत ज़्यादा वो गया था ना, अपसेट हो गया था। और तब से उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। अब फिर वो अपनी वाइफ से भी बातें नहीं करता था, उसे उसने कुछ बताया नहीं। और फिर उसके मन में भी डाउट हो गया था कि शायद मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, उसे ये गलत फहमी हो गई थी ना। और फिर उसने उसे छोड़ दिया था, उसने उसे जाने दिया। तो मतलब इसमें मतलब और चीज़ें भी दिखा रही थी ना उसकी लाइफ की। हाँ, ये चीज़ सही लगी मुझे, क्योंकि मेनली जो फिल्म में होता है ना थोड़ा बहुत ही दिखाया जाता है उसकी लाइफ को, हीरो की लाइफ को ज़्यादातर उस पर फोकस किया जाता है। ज़्यादातर एक केस को ही दिखाते हैं, जिस केस पे मतलब मूवी बनी हुई है केवल उसी को दिखाया जाता है। लेकिन इसमें उसकी लाइफ को दिखाया किस तरह से होती है, उसकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या होता है, वो चीज़ भी अच्छी लगी इस फिल्म में देखने में। तो फिर इसमें और चीज़ भी देखने को मिली, उससे फिर जुड़ा हुआ हमें लास्ट में जब वो मरा तो हमें भी दुख हुआ। तो ये चीज़ें अच्छी लगी हमें। तो जो इसमें कैरेक्टर है जो मतलब जोसेफ का, तो उसे मतलब इस्टेब्लिश किया हुआ है स्टार्टिंग में। तो पहले उसे इस्टेब्लिश ही किया, मतलब बीच बीच में जो फ्लैशबैक दिखा रहे थे उसके जरिए उसका जो मतलब उस कैरेक्टर को ना, ताकि हम उससे जुड़ सकें। और फिर हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही थी फिल्म में। फिर तब जाके उन्होंने वो केस प्रॉपरली फिर उस बाद में उसी केस को दिखाया। तो इसके मतलब इस सब से फिर मूवी देखने में मैं मतलब कहीं भी बोर नहीं हुआ हम, और मतलब इंटरेस्ट आ रहा था फिल्म को देखने में। तो मतलब इस तरह से जो इसमें दिखाया गया ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मतलब काफ़ी मज़ा भी आया फिल्म को देखने में। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में ना, कि इसमें उसकी लाइफ भी दिखा रही थी जोसेफ की, कि उसकी लाइफ में पास्ट में क्या क्या हुआ और क्यों वो इस तरह से शराब पीता है, और सारी चीज़ें को दिखाया गया मतलब ना। और फिर तब जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तब जाके वो केस पे किस तरह से उस केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करता है और अपनी वाइफ और अपनी डॉटर का मतलब बदला लेता है।
तो तब उस चीज़ को दिखाया गया, तो वो चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी लगी। बाकी जो जॉर्ज की बहुत कमाल की एक्टिंग है। हाँ, जो जॉर्ज मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। इससे पहले हमने देखी थी उनकी और तो भाई की कहानी थी उसमें। हाँ, उसमें भी पुलिस वाले का रोल प्ले किया था उन्होंने। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो अपने भाई की मौत का। अब वो मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये वाली मूवी भी अच्छी लगी हमें। उस मूवी में भी ऐसा ही दिखा रखा था, नहीं था दिखा रखा, उसके भाई की लाइफ भी थी दिखा रखी कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा था और जिस तरह से वो क्या और उस लड़की की जिस तरह से वो क्या मदद करता है, फिर उससे प्यार हो जाता है। तो उसमें भी इसी तरह से दिखा रखा था। तो वो फिल्म भी मतलब काफ़ी अच्छी थी और ये फिल्म भी मतलब काफ़ी अच्छी दोनों ही। कमाल के एक्टर हैं और फिल्म एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, नेचुरल सी। बहुत अच्छी लगी उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर चेंज कर रखा था अपना, जब उन्होंने पास्ट का दिखाया उसका, फिर प्रेजेंट का दिखाया, तो काफ़ी सही लगा देख के। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अच्छा था दिखा रहा था ना। मतलब लग रहा था कि ये पास्ट का दिखा रहे हैं सीन ये और ये प्रेजेंट का दिखा रहे हैं। और बाकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है ही उनकी। बाकी ओवरऑल सभी एक्टर कमाल के हैं, मूवी में सबका एक रोल अहम है। बाकी पीटर और दोनों की बनी नहीं आपस में लास्ट में भी मतलब बात नहीं करते थे दोनों आपस में, जोसेफ और पीटर। हाँ, ज़्यादा नहीं करते थे बात, नाराज ही था जो मतलब जोसेफ नाराज था पीटर से शायद। हाँ, पहले से जब उसकी वाइफ उसके साथ गई ना तो बात नहीं करता था उससे। फिर बाद में पीटर भी समझ गया था कि अच्छा आदमी है जोसेफ। उसने उसके हॉस्पिटल का बिल भी चुकता किया उस तरह से, मतलब अच्छा था। पीटर भी अच्छा इंसान था, दोनों ही अच्छे थे। उसका नहीं दिखाया उन्होंने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी कि उसकी मौत कैसे हुई, उसे किसने मारा, ये और उस केस को उसने सॉल्व किया था कि नहीं किया था, वो चीज़ नहीं दिखाया उन्होंने। मुझे लग रहा था वो चीज़ दिखाएंगे वो, जिस तरह से परेशान था ना मुझे अब तो कर ही देगा सॉल्व, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मुझे लग रहा था वो उस केस को सॉल्व करेगा और उसकी गर्लफ्रेंड का जो कातिल है उसे मतलब सजा दिलवाएगा, ऐसा लग रहा था मुझे। सुलझा रह गया फिर वो, उसका उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। मैं चाह रहा था कि वो केस खुले और सामने आए वो जिसने किया है वो उसका हस्बैंड ही हो सकता है, और कौन हो सकता है, शायद उसके हस्बैंड ने किया हो, या हो सकता है किसी गुंडे ने किया हो, किसी चोर ने। उसका हस्बैंड था नहीं ना, इसलिए शक उसी की रस्सी पे जाता है। लेकिन मतलब उसको छोड़ना नहीं चाहिए था फिल्म में ना, दिखाना चाहिए था क्या हुआ। हाँ, उसको भी दिखाना चाहिए था, बेरहमी से मारा गया ना उसको। हाँ। बाकी फिल्म ओवरऑल अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। Thanks for watching.